اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور جبریل امین اترتے ہیں، اور یہ صبح طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کم از کم 5 راتیں تو عبادت کے لیے جو ہے وہ مخصوص کی جائیں، تاکہ 5 راتیں جب ہم عبادت کریں گے یا ایک مسلمان عبادت کرے گا تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوگا۔ کیا حمد ہو اس کی جو محمد کا خدا ہے، مدحت کا خلاصہ ہے یہ 100 باتوں کی ایک بات۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں صاف ٹک ٹی وی اور میں ہوں زید علی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سید امجد علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب قدر کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم اسی موضوع کے متعلق ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ قبولیت کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، اپنے پیاروں کو شب قدر عطا کر دیتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر کیا حال ہے؟ اللہ۔ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ سر سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ سوال کریں گے، لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر بیٹے قدر و منزلت والی رات، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ حقیقت میں جس طرح قرآن کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو لیلۃ القدر یعنی قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا، تو لہٰذا لیلۃ القدر سے مراد ہے قدر و منزلت والی رات، یعنی وہ رات جس میں رب تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ ہاں جی بیٹے، اس میں یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ قرآن میں جو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، لہٰذا پہلی بات یہ آ گئی کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اب کب نازل ہوا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے قدر و منزلت والی رات میں نازل کیا ہے۔ تو رمضان المبارک کی ہی وہ رات ہوگی کہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب وہ کب ہے اس سلسلے میں ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ایک سال آپ نے پہلی رمضان سے لے کر 10 رمضان تک اعتکاف کیا، اور 10 رمضان کو اپنا چہرہ اطہر خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، یعنی 10 تک لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر آپ نے اعتکاف کیا اور 20 تاریخ کو آپ نے اپنا چہرہ اطہر نکالا اور فرمایا کہ 20 تک بھی رات نہیں ہے۔ پھر ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے، لہٰذا آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی کہا کہ آؤ اب آخری عشرے کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، اور جس رات نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ دوسرا نام جو اسے دیا گیا ہے وہ سورۃ الدخان میں دیا گیا ہے، وہ لیلۃ المبارکہ کا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے لیلۃ المبارکہ میں نازل کیا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں ایک ہی رات کے نام ہیں۔ یہ طے شدہ ہے کہ یہ رمضان کی رات ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے مطابق یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں۔ اب اس میں مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، کوئی 21ویں کے بارے میں کہتا ہے، کوئی 25ویں کے بارے میں، 23ویں کے بارے میں، اور حضرت کعب احبار کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ سر یہ 5 طاق راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر جو مخصوص رات میں کیوں نہیں، مطلب کسی ایک مخصوص رات میں کیوں نہیں بتائی گئی؟ کبھی 21، کبھی 23، پھر 25، 27 اور 29۔ ہاں بالکل اچھا کویسچن ہے بیٹے۔ اصل میں اس میں یہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک رات بتا دی جاتی تو پھر اس کے اندر اگر جو تو اللہ رب العزت کی عبادت کر لیتا اسے تو 1000 مہینوں کی سے بہتر یعنی زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا، لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے
उस रात के अंदर अल्लाह की इबादत ना करता और गलत कामों में जो है वो लगा रहता, तो फिर उसे अजाब भी उतना ही होना था। लिहाजा उसे जो है वो मख्फी रखा गया है, ताकि जो तो इबादत कर लेगा वो तो अजर पा जाएगा, और जो इबादत नहीं करेगा उसे, वो अगर गुनाह करता है तो उसे एक आम रात में किए हुए गुनाह का ही गुनाह होगा, सजा जो है वो मिलेगी। इसलिए इसे बताया नहीं गया। दूसरे, अगर एक बता दिया जाए तो इसमें जो है वो फिर आसानी इस अंदाज में हो जाती है कि फिर वो शॉर्टकट की जो तलाश, यकीनन ये एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि शॉर्ट से शॉर्ट हमें बताया जाए, लेकिन जो हकीकत में कम से कम 5 रातें तो इबादत के लिए जो है वो मखसूस की जाएं, ताकि 5 रातें जब हम इबादत करेंगे या एक मुसलमान इबादत करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने परवरदिगार के हुजूर पेश होगा। और फिर दूसरी बात ये है कि ये चेंज होती रहती है। ये नहीं है कि अगर 27वीं है तो वो हर साल 27वीं आएगी। किसी साल वो 21वीं भी आ सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है, और 27वीं भी हो सकती है, 29वीं भी हो सकती है। तो इसलिए चूंकि वो रोटेशन में आना है, इसलिए कि हमारे जो दूसरे कैलेंडर हैं, जैसे शमसी कैलेंडर है जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम फिक्स डेज हैं, फिक्स जो है वो महीने हैं, कोई 30 का है, कोई 31 का है, कोई 28 29 का है। लेकिन यहाँ पर 29 और 30 के अंदर जो है ये रोटेट होते रहते हैं। लिहाजा जब ये रोटेट होते हैं तो 10 दिन का हर साल के बाद फर्क पड़ जाता है। तो अब उसके अंदर भी ये मुख्तलिफ हो सकती है, यानी 21वीं से लेकर 29वीं तक मुख्तलिफ हो सकती है। लिहाजा किसी एक का बताना जो है वो सही नहीं था। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ लाए और बताना चाह रहे थे, यानी वो अपने इबादत के बाद बाहर तशरीफ लाए, तो बाहर 2 आदमी जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें बताने के लिए निकला था कि लैलतुल कद्र कौन सी रात है, लेकिन क्योंकि 2 अशखास बाहम लड़ाई कर रहे थे, लिहाजा वो इल्म मुझसे उठा लिया गया है। बहरसूरत इसमें ये बहुत बड़ी हिकमत ये है कि कम से कम 5 रातें तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हों और फिर अपने परवरदिगार के हुजूर इल्तिजा करें। फिर इसके अलावा जो दूसरा तरीका इसका बताया गया है ना, वो है एतिकाफ का। तो एतिकाफ है आखिरी पूरे अशरे का जो सुन्नत एतिकाफ है, जिसे हम सुन्नत मुअक्कदा अलल कफाया कहते हैं, कि वो कुछ लोग भी अगर कर लेते हैं तो वो पूरे मोहल्ले से अदा हो जाता है। तो एतिकाफ में क्या होता है, पूरी पूरी रात जो है वो इबादत की जाती है। और इसमें एक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है, वो ये है कि अगर कोई सो भी रहता है ना उस रात, वैसे वो एतिकाफ में है, इबादतें कर रहा है, नवाफिल भी पढ़ रहा है, कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है, लेकिन अगर वो कोई वक्त सो भी गया है उस रात को, तो उस सोने का भी उसे अजर सवाब मिलेगा और उसे लैलतुल कद्र की बरकतें जो हैं वो हासिल हो जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक दे कि हम उस रात को पाएं और कमा हक़्क़ुहू उसमें सवाब भी हासिल कर सकें। शब कदर में क्या अमाल करने चाहिए? जी बेटा, शब कदर जो है, इसके बारे में कुरान पाक ने इसकी जो अज़मत बयान फरमाई है ना, वो ये है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, कि इस रात में फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमीन उतरते हैं, और ये सुबह तलू होने तक ये रात सलामती ही सलामती है। तो अब इसकी सलामती को, इसकी अज़मतों को हासिल करने का तरीका क्या है कि अपने परवरदिगार के हुजूर उसकी इबादत की जाए और उससे दुआएं की जाएं। वैसे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब रात के तीसरे पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, जिस तरह उसकी शान के मुताबिक है, और फिर पुकार होती है कि है कोई मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसकी मगफिरत कर दूं, है कोई रिज्क तलब करने वाला कि मैं उसे रिज्क दूं। तो ये फजर तक ये पुकार होती रहती है। लेकिन लैलतुल कद्र में की ये अजमत है कि इस वक्त इसमें ये पुकार मगरिब के बाद ही, यानी सूरज गुरूब होने के बाद ही रब्बे ताला आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज होते हैं अपनी शान के मुताबिक, और ये पुकार होती रहती है
हत्ता मतलाइल फज्र, यहाँ तक कि फजर तलू हो जाए। अब इस रात के दौरान कौन से अमाल करने हैं? तो इसमें कुरान पाक की तिलावत है, और एक सबसे जो जरूरी चीज है वो है क़यामुल लैल। क़यामुल लैल का मतलब क्या है? जिसे हम दूसरे लफ्जों में तरावी भी कहते हैं। हमने उसका नाम जो है ना वो क़यामुल लैल से तरावी कर लिया हुआ है। और तरावी के अंदर क्या होता है? तरावी के अंदर हम 8 या 20 रकतें पढ़ते हैं, जिसमें कुरान पाक जो है वो सुना जाता है। और यकीनन उसकी एक अहमियत है कि कुरान पाक जो है वो सुना जाए। अब वो कैसे हम सुनते हैं, ये तो सुनाने वालों को या सुनने वालों को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। लेकिन बहर सूरत ये कुरान पाक की तिलावत भी हो रही होती है और क़याम भी हो रहा होता है। क़याम का मतलब होता है खड़ा होना। क़यामुल लैल का मतलब है रात को खड़ा होना। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने क़याम किया रमज़ान की रातों को ईमान और एहतिसाब के साथ, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तीसरे हिस्से इस हदीस में इरशाद फरमाया मन क़ाम फ़ी लैलतिल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया, शर्तें दो हैं, ईमान और एहतिसाब के साथ, सवाब की नीयत से खुद एहतिसाबी करते हुए, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो लिहाजा क़यामुल लैल जो है, रात को क़याम करना, ये इसके लिए पहली चीज़ है कि रातों को क़याम किया जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर उसके जो नवाफिल अदा किए जाएं। और दूसरी चीज़ जो है वो है दुआए मग़फ़िरत। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर लैलतुल क़द्र पा लें तो उसमें क्या दुआ करें? तो आपने इरशाद फरमाया कि आयशा, उसमें दुआ किया करो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी, कि ए परवरदिगार, तू माफ़ करने को पसंद करता, इन्नका अफ़ुव्वुन, तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफ़ करने को पसंद करता है, फ़अफ़्व अन्नी, तू हमें माफ़ फरमा दे। तो इस तरीके के साथ दुआएं जो हैं वो करना है। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फ़र्ज़ जो इबादात हैं वो इज्तिमाई हैं। ये हमें इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। जमात बाजमात नमाज है फ़र्ज़ के लिए। जो नवाफिल या सुनन और नवाफिल हैं, वैसे तो इबादात की दो ही किस्में हैं, एक हैं फ़राइज़ और दूसरे हैं नवाफिल। फ़राइज़ वो हैं जो कि फ़र्ज़ हैं, और नवाफिल जो उसके अलावा हैं। नफल कहते हैं ज़ायद इबादत को। तो जो भी हम करेंगे वो खा सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, या जिसे हम नफल कहते हैं वो हैं। ये सारी की सारी नफली इबादात हैं। और नफली इबादात के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनका सवाब घर के अंदर अदा करने में है। क्यों? कि उसमें फिर रियाकारी नहीं होती, उसमें दिखावा नहीं होता। फ़राइज़ को खुल खुला के अदा करना है ताकि दूसरे भी आएं, दूसरे भी तवज्जो करें। और नवाफिल छुपा के अदा करने हैं ताकि कहीं रियाकारी ना आ जाए। तो इसलिए लैलतुल क़द्र में और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जितनी इबादत आपकी लैलतुल क़द्र के बारे में या ताक रातों के बारे में हैं, वो क्या हैं? वो घर के अंदर हैं। आप खुद भी जागते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। और कहीं भी कोई ऐसी हमें मिसाल नहीं मिलती कि आप मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ़ ले गए हों और वहाँ जाकर आपने जो है वो इज्तिमाई इबादत जो है वो की हों। हमारे यहाँ एक बस वो एक चीज़ चल निकलती है तो फिर चलती रहती है। ये अपने घर वालों को भी, क्योंकि सबसे पहले जो हमने जवाब देना है वो अपने बारे में और फिर उसके बाद अपने घर वालों के बारे में है। लिहाजा इस रात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के हुजूर पेश होना है, लंबे क़याम करने हैं, लंबे रुकू करने हैं, लंबे सजदे करने हैं। अब इसमें तादाद नहीं काउंट होती कि कितने नवाफिल पढ़े हैं, 10 पढ़े हैं कि 100 पढ़ा है कि 200 पढ़ा है, नहीं। देखा ये जाना है कि कैसे अदा किए। और फिर नमाज के बारे में तो ये भी है ना कि नमाजों को गिना नहीं जाना, तोला जाना है। नमाजों का वजन होना है कि किस, और वजन किस हिसाब से कि किस कदर खुशू व खुजू से पढ़ी गई हैं। लिहाजा 2 रकतें भी
اگر خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی جائیں تو وہ ان 10 رکعتوں سے بہتر ہیں کہ جو جلدی جلدی میں جو ہے وہ ادا کی جائیں گی۔ تو اس لیے اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ موقع دے کہ ہم طاق راتوں کے اندر جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں تو ہمیں اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے، رزق کی فراخی کی دعا بھی کرنی چاہیے، بلکہ پاکستان کے لیے اس کی بہتری کے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، جو لیلۃ القدر ہے اس کی کیا علامات؟ جی بیٹے، یہ جو ہمارے بزرگوں نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جن کے نصیب میں یہ رات ہوئی ہے، انہوں نے کچھ نشانیاں تو اس کی بتائی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب یہ رات کے گزرنے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، وہ سرخی مائل ہوتا ہے، اور یعنی جو اس کی روشنی ہوتی ہے نا اس کے اندر تیزی نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو نشانی بڑی جو ہے وہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رات کو ستارے بڑے روشن ہوتے ہیں، موسم جو ہے وہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ ہم دیکھیں نا تو شہاب ثاقب جو ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، اور آگے کو ٹوٹ کر آگے کو نکلتے ہیں اور پیچھے روشنی کی ایک لکیر سی قطار سی چھوڑتے چلے جاتے ہیں، لیکن لیلۃ القدر کے اندر جو ہے یہ ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ نشانیاں جو ہے وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو یقیناً اللہ رب العزت جن کی قسمت میں یہ رات کرتا ہے تو ان کو خود تو پتہ چل جاتا ہے، احساس ہو جاتا ہے کہ جب وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو عبادت میں خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، ان کی توجہ بھی قائم رہتی ہے، اور اللہ رب العزت کی عظمتوں کے نظارے جو ہے ان سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی تو ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سید امجد علی، ان سے ہم نے لیلۃ القدر کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جانا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔